بلوچستان میں جاگی، کشمیر میں جاگی، گلگت میں جاگی، جاگی 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 جاگی، ہر گھر میں جاگی، ہر گھر میں جاگی، سڑکوں پر جاگی، ہر شہر میں جاگی، ہر دیہات میں جاگی، جاگی 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 جاگی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ، اور آج ہم جہاں پہ موجود ہیں یہ وومن انٹرنیشنل ڈے کے اوپر عورت مارچ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ پاکستان جیسے معاشرے میں عورت مارچ کے اوپر بھی بہت زیادہ کنٹروورسی ہوتی ہے کہ یہ کیوں کرتی ہیں، نعروں کے اوپر بات ہوتی ہے، کبھی فارن فنڈنگ کے الزام لگتا ہے۔ حالانکہ ایک چیز جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خواتین آخر باہر آتی کیوں ہیں، جب اس ملک میں میشا شفیع کے مقابلے میں علی ظفر جسے کہتے ہیں وہ استغاثہ بن جائیں، جس ملک میں 6 سال کی بچیوں کے بھی ریپ ہوتے ہوں، وہاں پر پھر عورتوں کو مارچ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر آپ ہمارے ساتھ ایک عورت مارچ کی پارٹیسپینٹ موجود ہے، آپ کہاں سے آئی ہیں اور کس جذبے سے آئی ہیں؟ جی، میں ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ کی اسلام آباد کیڈر سے تعلق ہے میرا، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ نے جو حوالے دیے کہ علی ظفر کا کیس اور میشا شفیع کا عورتوں کا نکلنا بنتا ہے، نہیں، یہ ہمارے جشن کا دن ہے، یہ ہمارا دن ہے، ورکر خواتین کا، خاص طور پہ مزدور خاتون کا، چاہے وہ کسی طبقے کی ہو، یہ ہمارا دن ہے۔ اور پھر اسی میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے جڑے جو مدعے اٹھتے رہتے ہیں سیاسی، سماجی، معاشی طور پہ، ان کو ہم ایڈریس کریں اور دلیری سے ایڈریس کریں۔ اب آج کا آپ یہ دیکھ لیجئے، ہم نے تیسرا سال ہے ہمارے عورت آزادی مارچ کا، اور NOC نہیں ہے ہمارا آج، لیکن ہم یہاں کھڑے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی شہری ہیں، آئین میں درج ہے کہ ہماری جان مال کی حفاظت اس ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کوئی ایک مسئلہ نہیں، ہمارے وقت کے ساتھ ساتھ پدر شاہی نے جو جڑیں جکڑ لیا ہمیں اپنے درمیان، ہم ان کی بہت سے مدعوں کو لے کے یہاں آتے ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم ہر طبقے کی، ہر ایج کی، ہر پروفیشن سے وابستہ ہاؤس وائف، ہر مطلب ایک عورت اپنی پہچان لے کے، اپنا دل لے کے، اپنا بینر لے کے، اپنا جھنڈا لے کے، اپنی سوچ لے کے یہاں کھڑی ہے۔ ڈی چوک پہ آج ہمارا رقص بھی میں سمجھتی ہوں ہماری جد و جہد کی طرف ایک بہت بڑا کامیابی کا قدم ہے، اور میرے خیال ہے اس ملک کو ملائیت نہیں، انسانیت کی ضرورت ہے۔ تقسیم کو رد کرنے والے ہیں، محنت کے نئے قاعدے بنانے والے ہیں، انقلاب ہے، انقلاب ہے، انقلاب ہے، ہمارے ساتھ HRCP کی چیئرپرسن ہنا جیلانی صاحبہ موجود ہیں، وہ بھی عورت مارچ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنی بہتری آئی ہے جب سے عورت مارچ ہو رہا ہے۔ میم، آپ ایک عرصے سے، آپ کو پتہ ہے پچھلے کئی سالوں سے عورت مارچ کا ہر سال انعقاد ہو رہا ہے، کیا اس کے بعد خواتین کے حقوق کے معاملے میں اویئرنیس اور حقوق میں کوئی بہتری آئی ہے؟ ان کو کچھ لوگوں نے سننا شروع کیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لمبی جدوجہد اور ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا؟ دیکھیے، جدوجہد تو لمبی ہے لیکن فرق بھی بہت پڑا ہے، اور میرا خیال ہے اویئرنیس بھی بہت آئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میری عمر کی عورتوں سے لے کر ینگر جنریشن تک اب یہ میسج پہنچنا شروع ہو گیا ہے کہ آپ کی لڑائی صرف چند ٹرینڈز کے خلاف نہیں ہے، آپ کی لڑائی اب اس ریاست اور اس ریاست کی ان قوتوں کے خلاف ہے جو ان ٹرینڈز کی پیداوار ہیں، ان ٹرینڈز کو فروغ دیتی ہیں اور ان لوگوں کو سرپرستی دیتی ہیں جو انٹالرنس پھیلاتے ہیں، جو عورتوں کو قید و بند میں رکھنا چاہتے ہیں، جو عورتوں کو ڈرا دھمکا کے اپنے حقوق حاصل کرنے سے روکنا چاہتی ہیں۔ تو یہ ٹرینڈز ہم لڑتے رہیں گے ان کے خلاف۔ یہ صرف ہماری لڑائی نہیں، یہ ہر پاکستانی کی لڑائی ہے، اور عورتوں کے حقوق کسی آئسولیشن میں تو نہیں پنپیں گے۔ ہم اسی طرح پورے معاشرے کو اٹھانا چاہتے ہیں، ہم پوری سول سوسائٹی کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ جمہوریت کے حوالے سے، رول آف لا کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے عورتوں کے حقوق کے ساتھ چلیں، تاکہ عورتیں بھی ایک علامت بنیں ایک اچھے معاشرے کا۔ تو یہ ہماری بڑی جمہوری لڑائی ہے، ہم اس لڑائی میں چلتے رہیں گے۔
हमारे लिए अहम हमारी स्ट्रगल है, हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो हमारे लिए सिर्फ बोनस है। अच्छा, एक देखें जैसे कि कल से एक इल्ज़ामात चल रहे हैं कि जो फॉरेन फंडेड ये मार्च है सब कुछ, हालांकि हकूक़ का मार्च है, एक हकूक़ मांग रही हैं औरतें, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो लोग इस मार्च की मुखालफत कर रहे हैं ये एक सोच भी है, हमारी सोसाइटी की सोच की नुमाइंदगी करते हैं, तो इसको तब्दील करने के लिए आपको क्या लगता है कितना अरसा लगेगा? और देखिए ये सिर्फ ये एक सोच नहीं है, ये एक ख़ास तबके की बनाई हुई सोच है, क्योंकि ये उनके एजेंडे को सर्व करती है सोच। मेरा ख्याल है कि हम बहुत हद तक उन लोगों को इकट्ठा कर सके हैं जो कि इस सोच की असलियत को जान पाए हैं और इस सोच के खिलाफ उठकर लड़ने को तैयार हैं हम। और वो लड़ेंगे और इसके इनकी सफ़ों में इजाफा ही होगा, इंशाल्लाह कमी नहीं होगी। हमारे साथ अभी एक और मार्च की ऑर्गेनाइजर मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि इनको ना NOC जारी किया गया तो किस किस्म की मुश्किलात आई, किस तरह से उसके बावजूद ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हैं, क्या मुतालबात हैं और क्या लगता है कि मुतालबात कब तक पूरे होते हैं? जी मेरा मारिया, मैं औरत आज़ादी मार्च की काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स में से एक हूँ। आज हम औरतों के आलमी दिन पे यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं तो हम ये बात करना चाहते हैं कि हम सिर्फ वुमेन्स राइट्स की बात नहीं करते, हम जब औरत के सवाल की बात करते हैं तो वो समाज से जुड़ा है, वो पिदरशाही से जुड़ा है, वो सरमायादाराना निज़ाम से जुड़ा है, वो इम्पीरियलिज्म से जुड़ा है, वो इन सारे हुक्मरानों से जुड़ा है कि जिन्होंने आज तक औरत के सवाल पे संजीदगी से नहीं बात की। अगर हम मुतालबात की बात करें तो उसमें हमारी जो इस मार्च की थीम है वो हमारी जो पिछले साल कोरोना की वबा आई है जिसकी वजह से हमारे माशरे के हालात बद से बदतर हो गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़े हैं, इन्फ्लेशन हुई है, रोज़गार ख़त्म हुए हैं और इस बहरान के दौरान जो लोगों की तस्लील हुई है, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हुई हैं, हम उस पर बात करना चाहते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने एक बहरान के दौरान भी कोई ऐसे इकदाम नहीं लिए कि जिससे मेहनत कश लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आए। जी मुझे आप ये समझाना चाहेंगे, आप कह रही हैं कि हम इस जो बहरान माशी आया उसके दौरान जो लोगों में बेरोजगारी हुई, जो सब कुछ उस पर बात कर देते हैं, तो क्या आप इसमें सिर्फ एक खवातीन के सेगमेंट की बात कर सकते हैं कि आप ओवरऑल सोसाइटी में जो एक आया? जी, हम ये समझते हैं कि औरत का सवाल अलग से नहीं है, औरत का सवाल माशरे से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है, मईशत के साथ जुड़ा है, सियासत के साथ जुड़ा है, फौज के साथ जुड़ा है। औरत की जंग अलग नहीं है। जब हम औरत की जंग की बात करते हैं तो उसमें सब अफेक्ट होते हैं। अगर हम पिदरशाही की बात करें तो औरतों के साथ साथ मर्दों पर भी इफेक्ट होता है। अगर हम सरमायादारी की बात करें तो उसमें हर मेहनत कश तबका पिसता है। तो औरत के सवाल को हम अलग नहीं देखते और हम ये भी समझते हैं कि जब तक इस माशरे में हर इंसान आज़ाद नहीं होगा, हर तबका आज़ाद नहीं होगा, तब तक हम में से कोई आज़ाद नहीं हो सकता। आप एक बड़ा आपके मुतालबात बड़े लॉजिकल है, समझ आ रही है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग अपना हक मांग रहे हैं, हकूक़ की बात कर रहे हैं जो आईने पाकिस्तान भी देता है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को ये फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात इस किस्म के क्यों लगते हैं? कल भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था। जी बिल्कुल, इसमें यही है कि हमारा जो एक रिलीजियस राइट भी है और फिर हमारे जो ट्रोल्स भी हैं जो कि चाहते नहीं हैं कि औरत की आवाज़ ऊपर आए, जो कि डरते हैं औरत की आवाज़ से, जो कि डरते हैं एक निहत्ती लड़की से, जो एक शेर भी है, कि ये वो लोग हैं कि जो डरते हैं कि अगर औरत बोलना शुरू हो जाएगी तो ये माशरा हिल के रह जाएगा, जो कि ज़रूरी है। ये कैसा माशरा है कि जिसमें आए दिन बच्चे बच्चियों के रेप होते हैं, कत्ल होती हैं, हमारी 80% ख़वातीन घरों में उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ये मैं रिसर्च से बात कर रही हूँ, मैं वैसे बात नहीं कर रही। तो ये समाज जो कि इतना गंदा हो चुका है उसको हिलाने की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि ये लोग डरते हैं औरत की आवाज़ से, इसीलिए वो हमेशा दबाने की कोशिश। आपको कई साल से हर साल ये मार्च का इनेकाद कर रहे हैं, आपको लगता है कि हर साल कुछ बेहतरी आ रही है, जो औरत को समझ आ रही है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की ख़वातीन खड़ी हो रही हैं, आपके मार्च की वजह से अवेयरनेस हो रही है, या आपको लगता है चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी हैं, हम लोग लेकिन अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं? उसके लिए तो मैं आपको कहूँगी आप थोड़ी सी नज़र दौड़ा लें, आपको बेतहाशा ख़वातीन हर तबके की नज़र आएंगी, आपको लेडी हेल्थ वर्कर्स नज़र आएंगी, आपको नर्सेज नज़र आएंगी, आपको कच्ची आबादी की औरतें नज़र आएंगी, शहरी औरतें नज़र आएंगी, स्टूडेंट्स नज़र आएंगी, प्रोफेशनल्स नज़र आएंगे। तो ये तो आप सिर्फ नज़र दौड़ा लें तो आपको समझ आएगी कि हाँ, आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क की औरत
आज़ाद हो रही है, उसको समझ आ रही है, और हम ये जंग जारी रखेंगे अपनी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मारिया, थैंक यू। तो ये हमारे साथ मारिया थी। मारिया ने कहा कि थोड़ी नज़र दौड़ाइए, तो हम नज़र आपकी दौड़वा देते हैं कि एक बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं इस मार्च में। अगर आप देखें, इसके अलावा हर तबके से ख़वातीन मौजूद हैं, मेहनत कश हैं, पख्तून ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद बैठी हुई है। इसके अलावा नौजवान ख़वातीन हैं जो तालिब इल्म हैं, वो बैठी हुई हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स बैठी हुई हैं। तो इससे हमें नज़र आ रहा है कि ये औरत मार्च जो कई साल पहले शायद लग रहा था कि शायद एक ख़ास एलीट है जो ये सोच रखती है वो करती है, लेकिन वो मार्च ने बड़ी कामयाबी से आम लोगों में पेनिट्रेशन किया है, उनको समझाया है आम ख़वातीन को कि उनके हुकूक क्या हैं और उनको अपने हुकूक मांगने चाहिए। और फिर अब आप देख रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट कि हर साल इस मार्च के ऊपर एक बहस भी जनरेट होती है, सोशल मीडिया पर भी, पाकिस्तान के कौमी मीडिया पर भी मेन स्ट्रीम जो है। और उसके अलावा ये ख़वातीन आप देखते हैं बाहर भी आती हैं, बात भी करती हैं। तो बात तो इतनी है कि अगर वो अपना हक मांग रही है तो ये फॉर्म फंडिंग के इल्ज़ामात कैसे? हक मांग रही है, मिलना चाहिए। अगर वो कहती है मेरा जिस्म मेरा मर्जी, तो क्या गलत कर रही है? एक इंसान का जिस्म उसी की मर्जी होगी, किसी दूसरे की मर्जी कैसे हो सकता है? तो हम आपको इस पर अपने और ये नहीं है कि मर्दों से हमें नफरत है, ऐसी बात नहीं है। रखिए। हमारे भाई भी हैं, बेटे भी हैं।